So let us continue. So this was the whole story about the design of the bottom reinforcement in different layers. But please keep that in mind that you have to be consistent with the spacing, because if you provide number 6 bar at the rate 6 inches in the center, and this is 6, and if you provide number 8 bar with 4 inches, and if you provide it with the 5 inches, so this will be not coinciding with the bars in different layers. So there will be obstruction for the concreting. So you have to keep this in mind while designing the raft in different layers. Now the next step is to design for the top reinforcement. And if you provide number 6 bar at the rate 6 in center to center, right? So the reinforcement at the mid is 0, but it's still asking some of the reinforcement at the edges. This is because of the unbalanced moment from the earthquake forces, and it will be asking the reinforcement in the other edges, and it is very obvious, and the pattern is very accurate. This, so you can provide top bar number 6 at the rate 6 in center, so this will work. If you do not want to make it uneconomical, so you can go for the any bar. If you use number 8 bar and use it number 6, so you can end up the design in only one layer. So but to make it economical, you have to provide 2 layers at the top as well. So for the first, you have to provide number 6 bar at the rate 6 in center, and this will be 0. What reinforcement is required in second layer? So this much reinforcement is required, and this is the direction 1. So let us check the direction 1, top direction 1, and this length is for example, this is take 2, and this length is 20, so 20 feet. So this length, the length of the bar will be 20 feet, and it will be in this direction, right? Similarly for this, and this much is reinforcement is very less. You can neglect that. You can see 0.01 and 0.02. If you provide, you can also provide it, but it is not necessarily required, right? So similar for the other direction, the length of the bar in the second layer, it is in the y direction. So the coordinate is 177 almost. So the other end is, so this is 163 and 177. So it is almost 15. So you have to take the length for the bar in the y direction, it is equal to 15. Similarly for this will also be 15. So if you provide a second layer of number 6 bar, same again with 6 in center to center, so the spacing in the software will be 3 inches. So you have to click on apply. So now it is vanished, disappear. So now it will work, right? So the conclusion for this is that we have to use number 6 bar at the rate 6 inches center to center in the first layer, and in the second layer again you have to use number 6 bar at the rate 6 inches center to center with the bar length of 20 feet in x direction, 15 feet length bar in y direction, right? So this is the whole story, how you design the raft in different layers, right? So after designing this reinforcement, you must go for the, I think this might be clear to you. I guess if I'm decreasing the spacing to 3, because let me explain it. For example, I'm using at the top number 4 bar, right? And the spacing is 6. If you divide 6 by 12, it will become 0.5. So I'm directly using 0.5. So the reinforcement I'm providing at the top is 0.88 inch square per foot, right? Now, how do I insert the spacing in here if I want to provide the second layer with the same spacing using number 6 bar? So again, you have to use the bar size and divide it with the spacing you want to provide. You want to provide number 6, so again it will be 0.5. So this is 0.88, right? So sum these two, so it will be 1.76. So if you want to use number 6 bar in the software in order to check the 2 layers reinforcement whether it is working or not, you have to divide that spacing with the that
bar you want to select in software. So you want to use again the same bar size, which is 0.4 for this area, and you have to divide with the reinforcement area you want to provide in the two layers. So it will be 0.25, and if you multiply this with 12, so it will come out to be 3 inches, right? So it means if you select number 6 bar and you provide the spacing 3 inches, it will represent the reinforcement in two layers with the number 6 at the rate 6 with the number 6 at the rate 6 in center, right? So this was a little bit explanation. I thought it may be necessary to explain the overall procedure, or there may be some doubts in the students that how did I decrease to 3 or 4. So this is the reason you have to calculate manually and insert in the software like this. Right, so this was the whole story about the design. So let us go to the limitations. And there is a maximum reinforcement spacing limitation as per the ACI. And this is again for the two-way slab. In our case, we have the H is equal to 42, and it will be 42 into 2 will be 84 inches, and it is 18 inches. So 18 inches governing, and we have provided the spacing 6 inches. So this criteria has been satisfied, right? So there is another check which is normally you do not need to do, but for the sake of the learning and for the clarity, I have included this there to check the demand and the capacity of the raft. Well, this much capacity soil will be capable of bearing the 12-story building or not, right? So the total capacity of the raft is 2 TSF, which is 4.408 KSF. And the total service load you will get from ETAB, which I've already explained to you how you can get that. You have to go to the table, and you have to go to the analysis, results, and reaction and base reactions. And you have to select the service load combo, and you have to check the overall load coming to the foundation, which is equal to 124,909, right? So this is the total service load, and the total raft area which is available. You can calculate it from the ETAB as well, or you can also calculate it in the AutoCAD, in which you have to provide this much area is available for the raft, right? And in our case, the area is 32,000 square feet. So if you divide the total service load by the available raft area, so the demand is 3.9 KSF, and it is less than 4.4, which is the capacity of the soil of the, you can say, raft. So the design is okay, right? So what if the demand is greater than capacity? Then we have three options. The first option is that you have to increase the raft area. If the plot area is very large, for example, you have provided this much raft, but the owner has the capability or have the plot size like this, so you can increase the raft thickness, raft area, and you can design your structure accordingly. But if this option is not applicable, because this is the plot raft area is the plot area, and you do not have any area to increase, the next option is we have to provide piles, right? We have to provide piles under this raft to overcome the this demand and to safely transfer into the soil, right? So some clients or many clients do not agree to provide piles because they says that it is an extra cost, and I'm not interested. So if this is not an option, you cannot increase the area, the client do not want to increase the pile, so you have only left with this option that you must decrease the number of story. If the story is 12 stories, you must say you have to decrease 2 story, 3 story, or 1 story as per the calculation you will do in that case, right? So this was the check whether the raft would work for the 12-story building or not. So this is how you calculate the that requirement. So this was the whole story about the design. So if you have any questions, now you can ask. सर जहाँ पे लिफ्ट होता है वहाँ पे सर ये जो फाउंडेशन थोड़ा डाउन होता है, जी जी, तो उसकी डिटेलिंग के बारे में थोड़ा बता दी सर। उसकी डिटेलिंग आप इस तरह प्रोवाइड करेंगे जिस तरह आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं, ये आपके पास राफ्ट 4 है, ठीक है जी।
ये आपके पास लिफ्ट पिट, उसको लिफ्ट पिट कहते हैं। ये हैव यू आप प्रोवाइड लिफ्ट पिट, आप यहाँ मॉडल कर नहीं सकते ना, ठीक है जी। सेफ टैप डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिजाइन, और ये आपके पास इसमें फिर आप करना चाहते हो इसमें आप वॉल लेंगे और इस वॉल के साथ फिर यहाँ पे राफ्ट करेंगे, सो आपके पास ये एक्यूरेट नहीं है। तो आपके पास ये लिफ्ट पिट है, नॉर्मली इसको 4 फीट लिया जाता है, राइट, 4 फीट या 5 फीट। लेकिन आप यहाँ पे जितना थिकनेस होगा दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द राफ्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 42 लिया है, सो ये आपके पास थिकनेस ये भी आपके पास 42 होनी चाहिए। और इसकी जी ये जो साइड से दिस मस्ट आल्सो बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द राफ्ट 42 इंच। ये जो आपके पास दो बाजू नजर आ रहे, ये भी आपके पास 42 इंचेस होने चाहिए। दिस मस्ट बी 42, दिस मस्ट बी 42। और यहाँ पे आपके पास एक बार प्रोवाइड किया जाता है फॉर द क्रैक ऑफ कंट्रोलिंग क्रैक्स, वो इस तरह के बार्स होते, ये आप प्रोवाइड करेंगे टू कंट्रोल द क्रैक्स बिटवीन द स्टेप्स ऑफ द राफ्ट। बाकी जितनी भी आपके पास राफ्ट की रेनफोर्समेंट आ रही है वो आप यहाँ नीचे प्रोवाइड करेंगे। सर ये जो क्रैक कंट्रोल के लिए ये रिबार इस्तेमाल करेंगे सर, ये कोई टिपिकल सेक्शन का यूज करेंगे? जी जी, आप टिपिकल सेक्शन आप इसको दे सकते हैं। नॉर्मली अगर आप इसके लिए 1/2 बार यूज कर ले तो आपके पास क्रैक कंट्रोल हो जाता है। इसकी ठीक डिटेलिंग है आपके सर। पास एक ACI डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसमें जाए तो आपके पास मिल जाएगा ACI 315। ACI 315 आपके पास डिटेलिंग का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपके पास सारी डिटेलिंग है, स्लैब, बीम्स, कॉलम्स, सबकी डिटेलिंग आपके पास मौजूद है। ठीक है सर। सर और इस बिल्डिंग का जो सेप्टिक टैंक होगा, अगर वो यहाँ पे आता हो, मतलब राफ्ट में कहीं पे? हाँ, नॉर्मली हम जो डिजाइन करते तो हम राफ्ट के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम प्रोवाइड नहीं करते, हम राफ्ट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप राफ्ट के नीचे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बहुत सी डिफिकल्टीज आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये प्लेन शो कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको टैब में शो कर दूं, तो नॉर्मली अगर आप राफ्ट के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी एक्चुअल आप मॉडलिंग करेंगे और इसकी आप फिर एक्चुअल इसकी एनालिसिस के बाद कंक्लूजन पे जाएंगे कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपके पास वाटर टैंक आप अंडरग्राउंड जो राफ्ट है उसमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह करेंगे कि आप उसकी पे साइज देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम का जो पंचिंग रेशो है, पंचिंग एरिया, पेरीमीटर एरिया, ये डिस्टर्ब ना हो। ये आपके पास D/2 ऑल द साइड्स आपके पास हो, D/2 आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर राफ्ट अंडरग्राउंड टैंक आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगेन आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास राफ्ट है, ये आपके पास ये मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, राइट। तो ये आपके पास इस तरह आप करेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम्स की पंचिंग जो पैरामीटर्स है वो डिस्टर्ब ना हो, फर्स्ट। सेकंड, आप अगेन ये आपके पास राफ्ट जा रहा है तो आप ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये आपके पास राफ्ट जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास उसकी स्लैब है, तो आप जो यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड करेंगे दिस मस्ट बी आल्सो इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द राफ्ट। ये जो अंडरग्राउंड और टैंक की जो वॉल्स होती है दिस मस्ट बी 42, फॉर एग्जांपल इन आवर केस इट मस्ट बी 42, तब इट विल ये आपके उस केस में आपके पास ये काम करेगा। अदरवाइज ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे आपके पास क्रैक्स हो सकते, तो आपकी बिल्डिंग आपकी गिर सकती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे कि आपके पास जो टैंक है वो कॉलम की पंचिंग पेरीमीटर में ना आए, और आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं जो टैंक की वॉल्स है दिस मस्ट बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द राफ्ट। ठीक है सर, मतलब एज साइड, बिल्डिंग की एज साइड पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, सेंटर साइड पे कोशिश करेंगे जी जहाँ जी पे बिल्कुल, पंचिंग का अगर आप इशू एज है। में प्रोवाइड कर एज में भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें कॉलम का जो पंचिंग पेरीमीटर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन है, जो सर हम कंबाइन फुटिंग और वो जो स्ट्रिप फुटिंग करते हैं, उसमें हम ये पंचिंग रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, मतलब थिकनेस ना बढ़ाई तो? आप इंटीग्रल बीम की बात कर रहे हैं? जी जी, जी जी इंटीग्रल बिल्कुल, बीम्स। आप कर सकते हैं कि हाँ, हर एक केस में आप कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रल बीम आप प्रोवाइड करना चाहते तो आप थिकनेस इंक्रीज ना करें, उसके लिए डिजाइन कर लें, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू।
सर ये जो राफ्ट डिजाइन होता है नॉर्मली टू वे स्लेब डिजाइन होता है। जी जी सर अगर इसका लेंथ बाय वेट जो रेशो अगर 2 से ग्रेटर हो, मतलब वन वे की कंडीशन में आता हो, बाज ऐसे प्लाट ऐसे होते हैं कि मतलब वन वे स्लेब डिजाइन में थे, फिर क्या करेंगे इसके साथ? तो फिर आप उसको वन वे स्लेब डिजाइन करेंगे। अच्छा, फिर वो राफ्ट एज वन वे स्लेब डिजाइन होगा। जी जी बिल्कुल, आपके पास वन वे स्लेब डिजाइन, आप उसकी रेशो निकाले ग्रेटर देन 2 है तो आपके पास उसको फिर आप वन वे स्लेब डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ओके सर। और सर ये टू वे स्लैब में सर ये मेन और डिस्ट्रीब्यूशन जो बार होता है उसकी जो लेंथ होता है, मतलब जो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जिस डायरेक्शन में भी हो जी जी बिल्कुल, पहला मतलब। ठीक है सर। इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई अगर आपके पास एक्स डायरेक्शन में जो बार है वो नीचे हो या ऊपर हो, या वाई में ऊपर नीचे हो, तो कोई मसला नहीं। ये मसला सिर्फ आपके पास वन वे स्लेब में होता है कि आपके पास जो मेन बार्स होते हैं वो नीचे होने चाहिए। ओके सर। सर ये जो स्ट्रिप फाउंडेशन होते हैं ना सर, इसकी जो एज वाला स्ट्रिप होता है वो सर कैंटिलीवर टाइप होता है, तो उसको हम एज ए कैंटिलीवर स्लैब करेंगे। जी जी बिल्कुल, उसको एज ए कैंटिलीवर स्लेब भी डिजाइन किया जाता है। आपके पास जो सेफ और रिटेव है उसको एज ए कैंटिलीवर ही डिजाइन करके आपको रेनफोर्समेंट देता है। आपने देखा होगा कि हमने जो डिजाइन किया तो उसमें आपके पास जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो बहुत काफी ज्यादा रहती है एजेस पे। उसकी जी वजह जी ये जी थी कि उसने बिल्कुल। उसे एज ए कैंटिलीवर डिजाइन किया था। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर ये बताएं, जो आपके कॉलम के करीब फिर रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग हम मतलब टॉप पे और बॉटम पे जरा ये डिटेलिंग में बता दें कि वो किस तरह हम करते हैं कि नॉर्मली शेयर जहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है वहाँ पे स्पेसिंग कम कर देते हैं, फिर सेटर में बढ़ा देते हैं। क्या मतलब, समझ नहीं है मुझे। सर जब आप कॉलम के नीचे राफ्ट में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम क्लोज स्पेसिंग दे देते हैं, जब वो सेंटर की तरफ जाते हैं तो स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। जी ये जी, जरा थोड़ा सा बता। उसकी वजह ये है कि आपके पास, आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि आपके पास जो रेनफोर्समेंट है वो आपके पास कॉलम के नीचे आपके पास ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके पास जो अनबैलेंस मोमेंट है वो आपके पास कॉलम के नीचे ही आ रही है। आपके पास राफ्ट एक्चुअली क्या है, राफ्ट इज इन्वर्टेड शेप ऑफ स्लैब। तो आपके पास जो स्लैब है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्लैब है। तो स्लैब में आपके पास जो कॉलम्स है और जो कॉलम्स के ऊपर आपके पास जो नेगेटिव बार्स है, तो आपके पास जो नेगेटिव मोमेंट्स होती है वो आपके पास यहाँ पे ज्यादा होती है और मिड में नेगेटिव मोमेंट्स कम होती है। तो अगर आप इसको इन्वर्ट करें इट विल बिकम राफ्ट। और आपके पास जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है वो आपके पास मिड में ज्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। तो अगर आप इस चीज़ों को अगर इन्वर्ट कर ले तो दिस राफ्ट इज अ स्लेब। तो इसको स्लेब अगर आप इसको कंसिडर करें तो आपके पास स्लेब में टॉप पे नेगेटिव बार्स ज्यादा होती है क्योंकि नेगेटिव मोमेंट होती है। तो अगर आप देखें तो राफ्ट में नॉर्मली नीचे रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रेनफोर्समेंट स्पेसिंग कम होती है जो मिड में होती है। उसकी वजह ये है क्या, ये दिस इज द टॉप इन केस ऑफ द स्लेब। तो टॉप मिड पोर्शन में रेनफोर्समेंट कम होती है, लेकिन अंडर द कॉलम उसकी रेनफोर्समेंट स्पेसिंग कम होती है और यहाँ पे ज्यादा होती है। यही वजह है, ठीक है जी। आप इसको स्लेब कंसिडर करें, फिर उस क्राइटेरिया को इमेजिन करें, उस पर सोचे तो आपको ये बात समझ आई कि स्पेसिंग कम ज्यादा क्यों होती है। थैंक यू सर। और सर ये बताएं, अगर थिकनेस हमारी नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं स्किन रिइंफोर्समेंट, जब 36 इंच की बात हम करते हैं, तो राफ्ट में इस तरह का कुछ होता है कि थिकनेस आपकी ज्यादा हो जाए कंक्रीट की, तो उधर हम फिर एक्स्ट्रा कोई देते हैं स्किन नहीं रिइंफोर्समेंट? नहीं, राफ्ट और स्लैब में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप स्किन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ बीम्स के लिए। ठीक है सर। ठीक है, अगर आप राफ्ट पे स्किन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप सिर्फ क्लाइंट के पैसे जाया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राइट सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी, सर नॉर्मली एज पे जो लाइन कॉलम्स होते हैं उस पे पंचिंग शेयर का इशू तो है, तो वहाँ सर अगर हम थिकनेस ज्यादा करें और मिड में थोड़ा कम करें इंक्लाइन। हाँ कर सकते हैं ना, आप कॉलम पिट्स दे दें। जी आप कॉलम पिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वन बे है और आपके पास ये कॉलम है और ये कॉलम है और ये आपके पास मिड में एक कॉलम है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इनके लिए थिकनेस बढ़ा दूं और इसके लिए स्मॉल रखूं। ठीक है,
ये मैंने जस्ट एग्जांपल जी। दिया, तो इसके अगर आप क्रॉस सेक्शन ले ले तो आप इस तरह होगा कि ये आपके पास ये पिट होगा और ये आपके पास इस तरह, ठीक है जी, आपके पास कॉलम आ रहा है और ये जा रहा है, तो ये थिकनेस कम होगी और यहाँ पे आपने कॉलम पिट प्रोवाइड कर लिया, इसको पंचिंग कंट्रोल करें तो आप इस पे कॉलम पिट, इसको कॉलम पिट कहते हैं, तो आप कॉलम पिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें फिर रेनफोर्समेंट का वही तरीका होगा फाइंड करने का, तो ये रेनफोर्समेंट इस तो कॉलम सेम तरीका है, जो आपके पास जो कॉलम पिट आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर जी आप सर। कॉलम पिट प्रोवाइड करें जस्ट टू कंट्रोल द क्रैक्स, जी बाकी सर। ऐसा कोई इशू नहीं, बाकी वही रेनफोर्समेंट चलेंगे जो राफ में चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू। So is there no question further? So this was the end of session 7. I will share the models and the documents and the lecture as well and the videos. So you can work with the models and you can practice the whole design of the raft. And if still you have any questions, you can ask me tomorrow. Right? ओके सर, थैंक यू। Right, sir. So see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.